Hello and welcome to learning session number 4 of chapter number 5, which is towards green energy. Okay, and in today's session we are also going to understand why this chapter is called towards green energy. So just keep an eye as to why that could be the case. Okay, so in the previous learning sessions we have seen energy. We have revised everything about energy, its definition, its forms. We had seen generation of electrical energy using Faraday's electromagnetic induction principle. Then we saw thermal power plants and its problems. And in the last learning session, we saw fission. What is nuclear fission? Basically, when a neutron hits the nucleus of uranium-235, it becomes so unstable that it splits into two smaller daughter nuclei. So that's nuclear fission, and we had seen how nuclear fission gives out power, and we can use that to make electricity in nuclear power plants. And what are the problems with nuclear power plants? Today, we are going to see power plants based on natural gas. Then we are going to see electricity generation and its relation with the environment. How are they both related? Then we are going to see problems with burning fossil fuel and nuclear energy. And lastly, we're going to see green energy. Okay. So these are the new words we're going to learn today. First is compress. Next is reservoir. Third is replenish. Fourth is scarce. Okay. Compress, reservoirs, replenish, scarce. So this is the schematic diagram for a power plant based on natural gas. Okay. So the first thing I want you to pay attention at is the combustion chamber. Okay, combustion chamber यानी what we had seen the meaning of the word combustion, right? Combustion मतलब जलाना, to heat something और जलाना. ओके, सो यहाँ पे जलने वाला है. यहाँ पे क्या जलने वाला है? दो चीज आ रही है इस चेम्बर में. इस चेम्बर में दो चीज कौन सी आ रही है? एक तो है फ्यूल. इस केस में फ्यूल क्या होगा? नेचुरल गैस. ओके, जैसे हम लोग ग्राउंड में से पेट्रोल डीजल वगैरह निकालते हैं, उसी तरह हम लोग ग्राउंड में से नेचुरल गैस भी निकालते हैं. सो इसका फ्यूल नेचुरल गैस है. सो इस फ्यूल वाले चेम्बर में नेचुरल गैस होगा. ठीक है. सो नेचुरल गैस यहाँ से कंबशन चेम्बर में जाके इट इज गोइंग टू कंबस्ट यानी जलने वाला. अनदर थिंग इज गोइंग फ्रॉम डाउन. ओके, इस बॉक्स का नाम नहीं दिया, बट ये बेसिकली कंप्रेशन बॉक्स है. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एयर कंप्रेस कर रहा है. नॉर्मल जो एयर है उसको कंप्रेस कर रहा है. कंप्रेस करने का मतलब क्या है? साइज को रिड्यूस करना. ओके, अगर साइज को रिड्यूस कर दिया तो उसका वॉल्यूम कम होने वाला है, और क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है तो उसका प्रेशर बढ़ने वाला है. ओके, सो कंप्रेसिंग द एयर leads to two things. First is volume is going to reduce, size कम होने वाला है, and second thing the pressure is going to increase. क्योंकि बहुत कम जगह पे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है, तो प्रेशर बढ़ने वाला है. So in combustion chamber, two things are going: the fuel, which is natural gas, and the compressed air. And why do we need air? We need air so that वो easily और अच्छे से जल सके. Okay, we need oxygen for fire, right? So that's why we need air also. So they are compressing the air and sending in the combustion chamber. So because of combustion of natural gas in presence of air, some gases are going to be released, and those gases will have high temperature because of combustion, and it will have high pressure also. Okay, so it will have high temperature, high pressure gases coming out because of combustion. So those gases are going to go into the turbine. Now this turbine, अब तक हमने जितने भी टर्बाइन देखे थे वो किससे टर्न हो रहे थे? स्टीम से या वाटर वेपर से. बट यहाँ पे किससे वो टर्न हो रहा है? गैस से. सो कंबशन चेम्बर में जो गैसेस बनेंगे उससे ये टर्बाइन रोटेट होने वाला है. एंड नेक्स्ट वी नो, राइट, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ गैस टर्बाइन it is going to be connected to a magnet in the generator. Because of change in the magnetic field across a conductor, electrical energy is going to be produced. Okay, so from here it's the same. Okay, gas turbine plus generator. और यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है? emission of hot gases. तो टर्बाइन को घुमाने के बाद वो जो gases है वो बाहर निकल रहा है. Okay, so this is the working principle. So basically these are the steps in which electrical energy is made in a power plant based on natural gas. Okay, next, as always, we are going to see two flow charts. First is a flow chart of how what are the various components of a power plant based in natural gas. Okay, so the first component is compressor for pressurized air. So इस कंप्रेसर के अंदर क्या होने वाला है? एयर को प्रेशराइज करने वाला है. प्रेशराइज क्यों बोला है? क्योंकि जब भी हम लोग कंप्रेस करते हैं तब प्रेशर इंक्रीज होता है, इसलिए प्रेशराइज्ड एयर बोल रहे हैं उसको. ओके,
ओके, सो कंप्रेसर में से प्रेशराइज्ड एयर और नेचुरल गैस में से फ्यूल। ओके, नेचुरल गैस इज द फ्यूल फॉर दिस काइंड ऑफ प्लांट। सो ये दो चीजें कहाँ पे जाएंगी? कंबशन चेम्बर में। कंबशन चेम्बर में दे आर गोइंग टू गेट हीटेड, then the gases which are going to be coming out of the combustion of natural gas, they are going to be sent on the gas turbine. The turbine is going to start rotating. Because of the rotating gas turbine, generator will start working, and because of the generator, electrical energy is going to be produced. So you can remember the entire process of power plant based on natural gas through this flow chart. Okay, I have told you this earlier also. इस chapter में बहुत सारे flow charts है. Make sure you are uh, keeping I mean you all know all the flow charts by heart. Okay, अगर तुम लोग को कभी स्कीमेटिक पूछा या फिर डिटेल में कोई प्रोसेस एक्सप्लेन करने पूछा, ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज द फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करते करते तुम लोग को सारे आंसर्स लिखने आ जाएंगे। सो दैट वाज द process. Now, transformation of energy. How is energy transformed from one form to another form in natural gas power plants? So first, natural gas में जो energy है वो किस टाइप की एनर्जी है? इट्स केमिकल एनर्जी। वाई? बिकॉज नेचुरल गैस के जो बॉन्ड्स है उसमें वो एनर्जी स्टोर्ड है। सो नेचुरल गैस में जो एनर्जी है इट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। ओके, क्योंकि हम लोग उसको कंबस्ट कर रहे हैं उस गैस को, the gases which are coming out of this combustion have lot of speed, and whenever something has speed, we say that it has kinetic energy. So that chemical energy is being converted to kinetic energy. This kinetic energy is being converted to kinetic energy of turbine. Okay, because of the high speed gas, the turbine is rotating, so energy is being converted into kinetic energy of turbine, and because of kinetic energy of turbine, we are getting electrical energy because of the generator. So by just knowing this flow chart, we can explain how energy is being transformed from one step to the other step in the process of conversion of electrical energy in natural gas power plants. Okay, next we are going to see what are the advantages of using natural gas. Okay, what are the advantages of using natural gas? So first, efficiency. Efficiency word का मतलब क्या है? Efficiency. So efficiency का मतलब है कम से कम फ्यूल यूज करके ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनाना। ओके, सो अगर बहुत कम फ्यूल में बहुत ज्यादा एनर्जी बन रहा है, यू विल से इट इज एफिशिएंट। अगर बहुत ज्यादा फ्यूल में बहुत कम एनर्जी बन रही है, यू विल से इट इज नॉट एफिशिएंट। ओके, so the efficiency of this type of power generation plant is higher than that of power generation plant based on coal. So coal में बहुत ज्यादा कोल तुम लोग जलाने के बाद इतना सा एनर्जी मिलेगा, whereas नेचुरल गैस में थोड़ा सा नेचुरल गैस को भी जलाए तो भी बहुत एनर्जी मिलेगी। ओके, सो हम इसको किस वर्ड से ये किस वर्ड से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं? यूजिंग द वर्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कितने अच्छे से वो पावर जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस द नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन सल्फर, burning of natural gas results in less pollution. Okay, so natural gas में सल्फर नहीं होता, and because उसमें सल्फर नहीं है, उसको जलाने से जो एयर पोल्यूशन होने वाला है वो कम होने वाला है। Okay, so these are the advantages of power generation in using natural gas. Next we are going to see electric energy generation and environment. यहाँ पे electric, I think I wanted to write electrical. Okay, so this is electrical energy generation and environment. What is the relation between both of them? So 2 points here. Electricity generation based on fossil fuels like coal, natural gas, and nuclear fuels like uranium and plutonium are not environmentally friendly. Environment के लिए वो अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? फॉसिल फ्यूल्स को यूज करके एनर्जी बनाना या फिर न्यूक्लियर फ्यूल्स को यूज करके एनर्जी बनाना, इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, if electrical energy is generated using these fuels, it can lead to environment degradation. Degradation यानी खराब होना। So अगर इन फ्यूल्स को यूज करके हम लोग एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, सो एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंट इज गोइंग डिग्रेडेड, which means वो एनवायरनमेंट को नुकसान होने वाला है। ओके, सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? ये ऐसा क्यों होता है? फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके क्या प्रॉब्लम होता है? वी हैव ऑलरेडी सीन दिस in various parts. We're quickly going to revise. Okay, so first point, burning of fossil fuels like coal and natural gas leads to emission of certain gases and soot particles.
ओके, फॉसिल फ्यूल्स को जलाने की वजह से क्या होता है, कुछ कुछ हार्मफुल गैसेस निकलते हैं और सूट पार्टिकल्स निकलते हैं। सूट पार्टिकल्स हमने देखा था, राइट, वो छोटा छोटा ब्लैक फ्लेकी सब्सटेंस को सूट पार्टिकल्स बोलते हैं। दिस रिजल्ट्स इन एयर पोल्यूशन, तो इसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट, increase in percentage of carbon dioxide in the air due to burning of fossil fuels leads to global warming। अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने की वजह से, सो हमारे अर्थ का टेम्परेचर और बढ़ने वाला, दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, डीजल, पेट्रोल एटसेट्रा लीड्स टू प्रॉब्लम्स लाइक एसिड रेन। ओके, अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है इन फ्यूल्स को बर्न करके और वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, फिर जब भी रेन होता है, ऑल दिस नाइट्रोजन गेट्स dissolved in the water and it comes down during rain, so उसकी वजह से एसिड रेन होता है। सो इन ताजमहल, बिकॉज ऑफ एसिड रेन्स, उसका जो मार्बल है वो अभी मेल्ट होने लग गया बिकॉज ऑफ द एसिड रेन्स, और वो येलो कलर का होने लग गया। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से एसिड रेन्स का प्रॉब्लम होता है। लास्ट, सूट पार्टिकल्स जनरेटेड ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अगर पूरी तरह से पूरा का पूरा फ्यूल बर्न नहीं होता तो सूट पार्टिकल्स बनेंगे, and it can lead to problems related to respiratory system like asthma। हमने देखा था कि respiratory diseases हो सकते हैं सूट पार्टिकल्स के वजह से, उसका एग्जांपल दिया उस डिजीज का, अस्थमा। ओके, so all of these points we had already seen, we have just revised all of them। next, और एक दूसरा एस्पेक्ट है फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो दूसरा एस्पेक्ट क्या है, it took millions of years for formation of fossil fuels like coal, crude oil and natural gases। okay, so crude oil क्या है, बेसिकली जब भी तुम लोग जमीन में से तेल निकालते हो, इट्स इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह सब मिक्स्ड होता है, उसमें से फिर बाद में तुम लोग डिस्टिलेशन करके सबको सेपरेट करोगे। ओके, सो जो ग्राउंड में से निकलता है वो क्रूड ऑयल होता है। सो इट टुक मिलियंस ऑफ years फॉर इट्स फॉर्मेशन, वो क्रूड ऑयल बनने के लिए मिलियंस ऑफ इयर्स लगे थे। ओके, तो रिजर्व्स ऑफ दीज फ्यूल्स आर लिमिटेड, दे आर गोइंग टू डिप्लीट इन द फ्यूचर। डिप्लीट यानी खत्म होने वाले हैं। ओके, और इसके रिजर्व्स लिमिटेड है, ऐसा अनलिमिटेड पेट्रोल, अनलिमिटेड डीजल हमारे पास नहीं है, अनलिमिटेड नेचुरल गैस हमारे पास नहीं है, उसको बनने के लिए लाखों साल लग गए थे, सो उसका लिमिटेड सप्लाई है। लास्ट पॉइंट, it is said that with the current speed of their use, the coal reserves in the world would last for another about 200 years। coal और कितने साल के लिए हम लोग को लास्ट करेगा, 200 साल के लिए और यूज हो सकता है कोल, उतना ही कोल बचा है। एंड द नेचुरल गैस रिजर्व्स फॉर अबाउट 200 to 300 years। ओके, और नेचुरल गैस कितना बचा, 200 या 300 साल तक यूज करने जितना ही नेचुरल गैस बचा है। ओके, न्यूक्लियर, हमने देखा था कि लास्ट टाइम न्यूक्लियर पावर में ये फॉसिल फ्यूल्स का चक्कर ही नहीं है, इसलिए उसके वजह से पोल्यूशन नहीं होता। बट न्यूक्लियर पावर के अपने अलग प्रॉब्लम है। क्या अलग प्रॉब्लम है, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर फ्यूल जब हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद जो कुछ भी बच जाता है, क्रिप्टॉन, बेरियम वगैरह, वो रेडियो एक्टिव होता है, तो उसको तुम लोग ऐसे ही फेंक नहीं सकते, उसमें से रेडिएशन बाहर निकल रहा है। सेकेंडली, पॉसिबिलिटी ऑफ डिजास्टर ड्यू टू एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई एक्सीडेंट हो गया, मेल्ट डाउन हो गया, तो सब रेडिएशन एनवायरमेंट में निकलने वाला है। अगेन दैट्स वेरी डेंजरस फॉर एनवायरमेंट एज वेल एज ह्यूमंस। मैंने बोला था अगर रेडिएशन बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गया, then it can cause cancer। okay, so because all of these reasons, हमने जो कुछ भी प्रॉब्लम देखे फॉसिल फ्यूल्स में और न्यूक्लियर पावर में, hence it can be said that the energy generation from fossil fuels and nuclear fuels are not environment friendly। okay, so ये सारे reasons की वजह से environment के लिए ये सारे फ्यूल्स अच्छे नहीं है। okay, so अगर ये सारे फ्यूल्स अच्छे नहीं है environment के लिए, तो कौन से है, that we are going to explore using this question। okay, उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस क्वेश्चन से ढूंढेंगे। सो इट्स एंड ऑफ योर चैप्टर, एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 60। इट इज क्वेश्चन नंबर 7 given at the end of your chapter। okay, so the question is, what is meant by green energy, which energy sources can be called as green energy sources and why, and give examples। okay, so the answer to this is, first, what is meant by green energy? Energy generated from sources which are unlimited and environmental friendly is called green energy। okay, so energy जिसके sources unlimited है और environment को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है,
ऐसे एनर्जी को हम लोग बोलेंगे ग्रीन एनर्जी। ओके, सो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। सो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी जनरेट करना चाहिए और फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर एनर्जी कम से कम करना चाहिए। आई डोंट अग्री विथ योर टेक्स्ट बुक कि न्यूक्लियर एनर्जी को यूज नहीं करना चाहिए। आई थिंक न्यूक्लियर एनर्जी इज वेरी एनवायरमेंटली फ्रेंडली अगर टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज किया तो, बट अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक न्यूक्लियर एज वेल एज फॉसिल एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है। सो ग्रीन एनर्जी एनवायरमेंटली फ्रेंडली होगा और उसका रिजर्व्स अनलिमिटेड होगा। ओके, लिमिटेड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनर्जी सोर्सेज कैन बी कॉल्ड एज ग्रीन एनर्जी सोर्सेज एंड व्हाई। सो उसका आंसर है एनर्जी सोर्सेज विच आर अनलिमिटेड एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली आर कॉल्ड ग्रीन एनर्जी सोर्सेज। वो फर्स्ट पॉइंट का रिपीटेशन है, बट क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा था एनर्जी सोर्सेज के बारे में, इसलिए सेकंड पॉइंट को रिपीट किया। ओके, फर्स्ट पॉइंट में एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट में एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, बट इट्स सेइंग द सेम थिंग। नेक्स्ट, व्हाई इज इट कॉल्ड ग्रीन एनर्जी सोर्सेज। ओके, सो उसका आंसर है थर्ड पॉइंट में, ग्रीन एनर्जी सोर्सेज गॉट दैट नेम also because they are naturally replenished and do not cause any harm to the environment. Naturally replenished मतलब क्या, replenish यानी उसको वापस भर देना, जितना भी कम हो गया वो अपने आप वापस भर जाना, उसको बोलेंगे replenish। ओके, सो इसका एग्जांपल क्या है, सनलाइट। सनलाइट को अगर तुम लोग यूज करोगे उससे सनलाइट कम आने लगेगा क्या, नहीं, सनलाइट जितना आता है उतना ही आते रहेगा, राइट। सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ एन एनर्जी सोर्स विच कैन बी रिप्लेनिश्ड, अपने आप वो भरते रहेगा, कभी कम नहीं होगा, इसलिए उसको अनलिमिटेड भी बोलते हैं, राइट। सो ग्रीन एनर्जी सोर्सेज को नाम क्यों मिला, बिकॉज दे नेचुरली रिप्लेनिश देमसेल्व्स एंड दे डू नॉट कॉज एनी हार्म टू द एनवायरनमेंट। इसके एग्जांपल्स क्या है, विंड है, वाटर रिजर्वायर है, सनलाइट है, बायोफ्यूल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। व्हाट इज वाटर रिजर्वायर, रिजर्वायर क्या है, रिजर्वायर इज बेसिकली जहां पे हम लोग पानी को स्टोर करके रखते हैं। जनरली वो एक तालाब होता है, ओके, इट्स अ लेक जहाँ पे पानी स्टोर करके रखते हैं और जब भी हम लोग को यूज करना है हम लोग यूज कर सकते हैं। सो रिजर्वायर इज नथिंग बट अ लेक, ओके, तालाब। So these are the examples of green energy sources. Okay, let's move ahead. Practice question. Again, I've been noticing that I've been giving you all the answers और तुम लोग को गंदी आदत लग रही है सारे के सारे आंसर्स स्पून फीडिंग की तरह तुम लोग को मिल रहे हैं, and you all have no practice of actually writing your questions by yourself. So this is a practice question I've added. Okay, so the question is given at the back of your chapter on page number 60. It's question number 8 ka A part. So explain the following sentences. Energy obtained from fossil fuels is not green energy. So तुम लोग को मैंने जिसके लिए जितना भी नॉलेज चाहिए, जितना भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो सब मैंने पिछले 3-4 स्लाइड्स में सिखा दिया और बता दिया. So now you all know it. Now that you all know it, you all should also know how to write it down so that you all get good marks in the exam. Okay, so try to write the answer by yourself. Pause the video here and try to write the answer by yourself. If you all cannot start writing the answer, यानी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार कैसे लिखे इस आंसर को, so I have a few hints. Okay, first is ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, यानी what are they expecting? They expecting 4 points. That's your first hint. So तुम्हें पता चल गया कि 4 पॉइंट्स चाहिए. नेक्स्ट आई हैव गिवन यू ऑल सम पॉइंटर्स कि 4 पॉइंट्स में कैसे लिख सकते हो ये आंसर. एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स इज नॉट ग्रीन एनर्जी. सो ग्रीन एनर्जी की बात हुई है ना क्वेश्चन में, तो पहले पॉइंट में तुमने एक्सप्लेन कर सकते हो ग्रीन एनर्जी होता क्या है. ओके, सो जस्ट गिव द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी एज योर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंडली, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बात हो रही है. सो फॉसिल फ्यूल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उससे पोल्यूशन होता है, राइट. सो लिखो कि फॉसिल फ्यूल से पोल्यूशन होता है या नहीं होता है और कैसे होता है पोल्यूशन. दैट शुड बी योर सेकेंड पॉइंट. नेक्स्ट, तुमने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि ग्रीन एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, सेकेंड पॉइंट में लिखा है फॉसिल फ्यूल से क्या प्रॉब्लम होता है. इन 2 पॉइंट्स के बाद अब तुम लोग को क्या लिखना है, डू फॉसिल फ्यूल्स फिट इन द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी. ग्रीन एनर्जी का जो कुछ भी डेफिनेशन दिया था तुम लोग ने फर्स्ट पॉइंट में, फॉसिल फ्यूल उस डेफिनेशन में फिट होता है क्या. ओके, और फिट होता है नहीं होता है उस हिसाब से तुम लोग अपना फाइनल कंक्लूजन लास्ट पॉइंट में लिखोगे कि ऐसा कि फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग ग्रीन एनर्जी क्यों नहीं बोल सकते. ओके, सो यूज दिस पॉइंटर्स एंड ट्राई टू राइट द आंसर बाय योरसेल्फ. ओके, we'll move ahead to the next question. So the next question is, saving energy is the need of the hour.
now that you have written this the answer to this question, अगर तुम लोग ने pause करके इस question का answer already लिख दिया, I also want you all to try and write the answer to this question. Okay, same logic. This will again be asked for 2 marks, so try to write it in 4 points. Okay, and for this I'm not giving you all any pointers. Try to write it by yourself. Okay, so I'll wait for 5 seconds for you all to complete both the answers. Okay, पिछला वाला answer भी using the points I've given, this wala answer using your own points. I'll wait for 5 seconds for you all to pause the video and complete the answer. Okay, I hope you all have completed both the answers. दोनों answers को तुम लोग ने attempt किया है. I'm going to share the answer for the second question. Okay, what are the 4 points I came up with? So these are the 4 points I have come up with. So मुझे basically reasons देने हैं कि एनर्जी को सेव करना इतना इंपॉर्टेंट और अर्जेंट क्यों. नीड ऑफ द आवर मतलब क्या है? नीड ऑफ द आवर यानी बहुत ज्यादा अर्जेंट है, अभी के अभी होना चाहिए. ओके, सो अभी के अभी क्यों होना चाहिए? तो बहुत ज्यादा अर्जेंट होना चाहिए. सो इसमें क्या क्या रीजंस हो सकते हैं ये मैंने लिखने की कोशिश की है. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू हाई एनर्जी कंजम्पशन द एग्जिस्टिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर डिप्लीटिंग रैपिडली एंड विल बिकम स्केर्स इन द फ्यूचर. फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा एनर्जी अभी जल्दी खत्म हो सकता है, और एक बार खत्म हो गया तो फ्यूचर में स्केल्स हो जाएगा. स्केल्स मतलब स्केल्स यानी बहुत डिमांड बहुत ज्यादा होगा बट सप्लाई बहुत कम होगा. ये ओके, सो बहुत ही ज्यादा कम सप्लाई में होगा. दैट्स द मीनिंग ऑफ स्केल्स. सो दैट्स माय फर्स्ट पॉइंट कि हम लोग खत्म कर देंगे अपने रिसोर्स, अपने एनर्जी सोर्सेस को. सेकेंड, सेविंग एनर्जी विल रिड्यूस द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विच विल रिड्यूस पोल्यूशन. अभी हम लोग को जो एनर्जी मिलता है फॉसिल फ्यूल्स को जला के मिल रहा है, और उसके वजह से क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है. सो अगर हम लोग ने एनर्जी कम यूज करना शुरू किया तो पोल्यूशन भी कम हो जाएगा. दैट्स माय सेकंड पॉइंट. ओके, लास्ट पॉइंट आई हैव रिटन अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन्स. सो बिकॉज रिडक्शन इन पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन्स विल आल्सो कम अंडर कंट्रोल. वो भी कम हो जाएंगे क्योंकि पोल्यूशन कम हो गया. सो माय आंसर हैज अ लॉजिकल फ्लो. फर्स्ट रीजन, फर्स्ट पॉइंट कैसे, सेकंड पॉइंट कैसे, सेकंड थर्ड पॉइंट. इट्स अ लॉजिकल फ्लो है मेरे आंसर में. और फोर्थ पॉइंट पे नहीं सोच पा रहा था. ओके, इफ यू कैन थिंक ऑफ अ फोर्थ पॉइंट दैट वुड बी ग्रेट, बट इफ यू कांट थिंक ऑफ द फोर्थ पॉइंट कैन सिंपली बी योर क्वेश्चन. ओके, तो सेविंग एनर्जी इज नीड ऑफ द आवर, हेंस लगा दो पहले और फिर बाद में लिखो. ओके, देयरफॉर या फिर हेंस सेविंग एनर्जी इज द नीड ऑफ द आवर. सो दिस इज द क्वेश्चन आई कम अप विद. इट्स, अगर तुम लोग ने खुद का आंसर लिखा है एंड इट डज नॉट कंप्लीटली मैच विथ माय आंसर, दैट्स ओके. ओके, बस you all should have valid points for your answer. So that's it for today. What are the new words we have learned today? First is compress. Compress यानी size को कम करना. Next we had seen reservoir. Reservoir यानी a large lake used as source of water supply. Next we had seen replenish. Replenish यानी बार बार वो fill होते जाएगा, अपने आप fill होते जाएगा. Next scarce. Scarce यानी insufficient, कम होना. Okay, ज्यादा supply नहीं होना. So another thing I've noticed in the notes, many people are still not making sentences out of these meanings. Okay, so when you're noting down these words in your notebooks, also make sentences out of this notebooks. So if you write compress and reduce size, uske niche use the word compress in a sentence. Okay, so if I had to give an example, after using the cover of my car protector, I compressed it and kept it in my bag. यानी उसका साइज मैंने कम करके अपने बैग में रख दिया. So once you use these words in the sentences, you all will also be able to use these words in your science के answers. So that's why it's important. You should also know how to use the words in the answers. Okay, so make sure you are also making sentences from these 4 words after you write the meaning. Cool. So that's it for today. I hope you all understood whatever we discussed today, and I will see you all tomorrow again. And that's it for today. Okay, see you guys. Bye.